on the swap of prisoners and captives in order to establish a ceasefire, a permanent ceasefire. अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि गज़ा में सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, जो कि कतर ने इसमें सालिसी की है और इन दोनों के दरमियान, यानी इसराइल और हमास के दरमियान, ये आपस में समझौता कराया है। It is with pleasure that the state of Qatar, Egypt and the United States announce the success of the joint mediation as the parties to conflict in Gaza Strip has reached a deal on the swap of prisoners and captives in order to establish a ceasefire, a permanent ceasefire, in addition to the delivery of intense relief aid into our brothers in Gaza Strip. Here, at the outset, I would like to extend appreciation to our partners in Egypt, the United States, namely the U.S.-elect's envoy, Mr. Steve Witkoff, and the Middle East and Northeast coordinator, in Mr. Brett McGurk, for their extensive effort that have yielded in a breakthrough in these negotiations reaching up to this deal. And all the thanks to the work team in Egypt, His Excellency Minister Hassan Rashad, who contributed and worked closely in partnership with their Qatari counterparts in order to reach this deal. As both the parties to conflict and both the parties in negotiation have reached an agreement, all the implementation measures have been ironed out tonight, and after this, the internal measures will be taken within the Israeli government, following which the deal will come into effect on Sunday, January 19th. The 0 hour जो गज़ा के ताल्लुक से सीज़ फायर की जो खबर आ रही है, उसके ताल्लुक से हम आपको बात करते हैं और बताते हैं डिटेल में कि किन किन शर्तों पर हुआ और कैसे कैसे कितने फेज़ों में और कितने मराहिल में ये सीज़ फायर पर अमल किया जाएगा। अब आपको बता दें कि दोस्तों, इसमें लिखा है कि तकरीबन हमास के करीबी दो सूत्रों ने पहले एएफपी को बताया था कि इजराइल लगभग 1000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल सरकार ने कहा कि वो सैकड़ों को रिहा किया जाएगा। कतर, अमेरिका, इजराइल और फ़लस्तीन अधिकारियों के मीडिया रिपोर्टों के अनुसार समझौते के अपेक्षित प्रारंभिक चरण के प्रमुख नीचे दिए गए हैं। अब दोस्तों, इसमें ताल्लुक से जो ये सारी चीज़ें हैं, कई सारे, यानी 42 दिन की ये जंगबंदी हुई है, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन गज़ा में जो जश्न का माहौल है, गज़ा में जो लोग वहाँ पर खुशी मना रहे हैं, उसका ज़रा कुछ झलक देख लीजिए, उसके बाद ये मैं आपको डिटेल से बता ही दूंगा। Selamünaleyküm. Az önce ateşkes haberini aldık çok şükür. Zaten çarşamba deniyordu. Çarşamba oldu. İmzalar atıldı. Gazze'de ateşkes oldu. Ben hala hikayemin başladığı yerde Saraybosna'dayım. Burada tatlı dağıttık ateşkes için. Elimde Filistin bayrağıyla geziyorum. Bugün benim doğum günüm. Hediye gibi geldi. Yani insan gerçekten sevinmeyi unutmuşuz. Evden çıkın şu anda, eğer imkanınız varsa evden çıkın, arabanız varsa.
Arabanın kornasına basın, ne bileyim. Bir yerlere gidin, camilere gidin, Fatih Camii'ne gidin. Evet, İsrail yani tamamen Filistin topraklarından çıkmadı ama diz çöktüğünün anlaşmasıdır bu. Yani artık Hamas'a karşı direnemediler. O kadar öldürdüler ki insanları. Ama yine yenemediler. Çok şükür artık bundan sonra İnşallah cayır cayır yanan insanları izlemeyeceğiz. Yani inşallah en kısa zamanda kapılar açılacak ve biz Gazze'ye gideceğiz. Tam olarak işimizi orada yapacağız. Yani şu anda haber bekliyoruz. İnşallah kapılar açılınca insani yardımcıları içeri aldıklarında biz de oraya gidip onların yaralarını sarmak için orada olmuş olacağız. Şu anda herkes bir plan yapıyor. Gazze'nin inşasına dair bütün STK'lar bir planlar yapıyorlar. Cenab-ı Allah her zaman diyordum, çocuklarıma da diyordum. Cenab-ı Allah'ı görmediğini mi sandınız? Görmediğini mi sandınız? O kadar öldürülmüş çocuğu görmediğini mi sandınız? İnşallah. Yani biz zafere her zaman inandık. Bu ilk adımı gerçekten। दोस्तों वीडियो आपने देख ली और देख लिया कि किस तरह से कंफर्मेशन मिलने के बाद कि वहां पर सीज फायर की जो है समझौता है वो हो गया है और उस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है और उसके ताल्लुक से वहाँ पर जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, चाहे वो गज़ा के हों चाहे वो इसराइल के हों, क्योंकि आम जनता जो है वो किसी भी तरह की जंग नहीं चाहती और आम जनता जो है उसको युद्ध विराम की बात बहुत ज़माने से करती आ रही है। अब इसमें बता दें कोई 42 दिवसीय जो है ये युद्ध विराम हुआ है, यानी 42 दिन की ये जंगबंदी हुई है। अब इसमें क्या होगा, 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा जो स्थायी युद्ध विराम बन सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले रिहा होने वालों में नागरिक, महिलाएं और महिला भर्ती, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग लोग, बीमार नागरिक और घायल लोग शामिल होंगे। जो पहला चरण है जिसमें 98 के आसपास बताए जा रहे हैं और बहुत से लोग इनको 33 बंधकों को भी बता रहे हैं। अब इसमें आगे लिखा है कि इजराइल सरकार को प्रवक्ता डेविड मेंसन ने कहा कि इजराइल 33 बंधकों को बदले में कीमत चुकाने के लिए तैयार है। एक अज्ञात इजरायली अधिकारी ने कहा कि बंधकों के बदले में कई सौ आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। अंतिम संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि 33 बंधकों को में से कितने जीवित हैं। हमास के करीबी 2 सूत्रों ने AFP को बताया कि इजराइल लगभग 1000 फलस्तीनियों को रिहा करेगा, जिनमें लंबी सजा वाले लोग भी शामिल हैं। शेख मोहम्मद ने कहा कि दूसरे और तीसरे चरण में इजरायली बंधकों के बदले रिहा किए जाने वाले फलस्तीनी कैदियों की संख्या 42 दिनों के दौरान अंतरिम रूप दी जाएगी। ये 33 लोग उन 94 बंधकों में शामिल हैं जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करने के बाद से गाजा में बंधक बना रखा है, जिसके बाद से ये युद्ध चल रहा है। कुल बंधकों में से 34 लोग ऐसे भी शामिल हैं जिन्हें इजरायली सेना ने मृत घोषित कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इजरायली अधिकारियों का मानना है कि 33 बंधक जीवित हैं, हालांकि हमास की ओर से इसकी पुष्टि होना बाकी है। अच्छा, कतर में प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरुआती 42 युद्ध विराम के दौरान इजरायली सेना गाजा के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से हट जाएगी ताकि कैदियों की अदला बदली, साथ ही अवशेषों की अदला बदली और विस्थापित लोगों की वापसी हो सके। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि पहले चरण के कार्यान्वयन के 16वें दिन दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू होगी और इसके ताल्लुक से आगे इसमें लिखा है कि हमास के करीबी सूत्र के अनुसार इजराइल सेना के दक्षिण रफा से लेकर उत्तर में बैत हनून तक गाजा के अंदर 800 मीटर गाजा तक रहने की उम्मीद की थी। अभी इसमें आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन देखना यह है कि तकरीबन 98 इनके होस्टेज हैं इजराइल के, जिनका आरोप है कि हमास ने उनको बंधक बनाया हुआ है और उसमें से उनको रिहा करने के बदले तकरीबन 1000 और बहुत से लोग कई हज़ार लोगों की बात रिहा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, कम से कम इतना ज़रूर है कि ऐसा समझौता हो गया है कि जो वहाँ पर जिनोसाइड चल रहा है और जो जंग चल रही है जिसमें सैकड़ों लोगों के
बल्कि लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं अब तक। आम जनता इजराइल की तरफ से भी मांग कर रही थी युद्ध विराम की, और गजा के लिए तो लोग सारी दुनिया से मांग कर रहे थे। तो उस पर अब समझौता हो गया है और वहां पर जो है वो आपसी बात बन गई है, यानी 98 फलस्तीन इजरायली बंधकों को रिहा करने के बदले में कई हजार फलस्तीनियों के रिहा करने की बात कही जा रही है। बहुत से लोग कई सौ की बात कर रहे हैं, बहुत से कई हजार की बात कर रहे हैं। बाज दफा तो जगह तो ये भी चल रहा है कि तकरीबन एक कैदी के बदले में 50 कैदी रिहा करेगा इजराइल। फलस्तीन के जो कैदी हैं, जो उन पर लंबी सजा भी काट रहे हैं, उनमें सब तरह के कैदी हैं, और एक कैदी के बदले इस तरह की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बारे में यह आया था कि उसको नकार दिया है। लेकिन अभी जो समझौता हुआ है वो 42 दिनों का समझौता है। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।